Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. For SBI PO, I ask your problems, and you have given number of problems in the comment column of that video. So we are covering one by one. Now, one of the problems given there is shuttering and not able to get good words in interview. Now, this is only a sort of a problem that is affecting your brain. That's all. It's not more than that. Because you are thinking that you are not getting good words is ultimately affecting delivery of your sentence and delivery of your words. First thing, there is nothing that is classified as good word or bad word. This thing you should be very clear in your mind. Interview means it is a conversation between you and the employer, and the employer is looking for certain qualities in you. He is not very much bothered about the choice of words. He is more interested in your communication skills. So by using simple words, you can effectively communicate. So don't look for difficult words. Use common words, simple words where communication is easy. If you find difficulty in speaking English, you can use the mixed language also, and you can also switch over to Hindi. With the start of every interview, the choice is given whether you want to go for English questions or if you want to go for interview in Hindi. So there is not a problem that you have to essentially answer all questions in English, because some people are afraid of English. That is another query raised by someone, that I am not good in English speaking, so what I should do. So I am clubbing two questions in this video. So if you are not comfortable in speaking in English, you can choose mixed language and you can choose Hindi language also. But if you can answer in English, it is still better, because that shows that you will be able to work anywhere in the country, because you have a command over a language that is a connecting language. But not knowing English is not a negative thing as far as interview performance is concerned. In interview, they are looking for officer-like qualities. There is a complete video. What are the officer-like qualities? I will again place that video link in the description box. So watch that video. So more important is not language in which you are answering. More important is communication. Are you able to communicate what you want to communicate? Sometimes choice of words convey some different meaning what you intend to convey, and that's why try to use simple words. Don't go for extraordinary words, and they are not doing your vocabulary testing. This you have to always keep in mind. It is not an English testing or vocabulary testing, rather it is testing of certain qualities. So be effective in communication. Use small sentences, use simple English, use simple Hindi. There is no need of looking for extraordinary words to communicate. Sometimes when you use complex words, you are confused, and even the board is not able to understand what you really means and what you really want to say. So always use simple language, that will help you. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. SBI PO इंटरव्यू से संबंधित हमने एक वीडियो में आपसे पूछा कि जो जो आपकी दिक्कतें हैं वो आप बताइए, एक एक करके हम कवर करेंगे. तो इस वीडियो में हम आपकी दो दिक्कतों को लेके चल रहे हैं. पहली दिक्कत है शटरिंग एंड नॉट एबल टू गेट गुड वर्ड, कि हम एक अच्छा शब्द मैं नहीं ढूंढ पाता हूँ और इंटरव्यू में मैं अटक जाता हूँ. और दूसरा जो बात बताई गई है वो ये है कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं इंग्लिश में नहीं बोल पाता हूँ, तो मैं क्या करूँ. अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि गुड और बैड वर्ड कोई नहीं होता. कठिन शब्दों की चुनाव करना आवश्यक भी नहीं है और कठिन शब्दों का इस्तेमाल करना भी आवश्यक नहीं है. इंटरव्यू का मतलब है हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत के जरिए जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय की उन क्वालिटीज़ को जज करना चाह रहा है जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ है,
और ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ क्या होती हैं उस पर एक कम्प्रिहेंसिव वीडियो है, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। तो जब आप इंटरव्यू में आंसर दे रहे हैं तो आपको अपने कम्युनिकेशन पे काम करना है। कम्युनिकेशन पे काम करने का मतलब है आप आसान शब्दों का चुनाव करेंगे, छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे और इस तरीके से आंसर देंगे कि आपकी बात इंटरव्यू बोर्ड को समझ आए। पहली चीज़ है कि आपको क्वेश्चन समझ आए और क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। ध्यान से सुनने के बाद उसको बिल्कुल सटीक आंसर देने की कोशिश करनी है। कठिन शब्दों से कुछ अर्थ नहीं बनता है और कठिन शब्द इस्तेमाल करके उससे कोई इम्प्रेशन भी नहीं बनता। कई लोगों को ये गलतफहमी होती है कि जितने मैं कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज़ करूँगा मेरा इम्प्रेशन बनेगा। ये वोकेबलरी का एग्ज़ाम नहीं है और ना ही इंग्लिश लैंग्वेज का एग्ज़ाम है। ये इंटरव्यू है, यहाँ आपकी क्वालिटीज़ देखी जा रही है, ना कि भाषा का ज्ञान। तो इसलिए अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो भी आपको कोई इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप मिक्स लैंग्वेज में भी आंसर दे सकते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू से पहले ही पूछा जाता है कि आपको माध्यम क्या चाहिए, इंग्लिश चाहिए या हिंदी चाहिए। अगर आपको लगता है आप हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी भाषा में भी उत्तर दे सकते हैं और इंग्लिश भाषा में उत्तर देना चाहें तो इंग्लिश भाषा में भी दे सकते हैं और मिक्स भाषा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्य बात यह है कि जो बात आप कहना चाहते हैं वो जो सामने इंटरव्यूअर है उस तक पहुंचना चाहिए। तो कम्युनिकेशन ज़्यादा ज़रूरी है और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होना यहाँ मतलब बहुत ही ज़रूरी है। आसान से आसान शब्दों का इस्तेमाल करें, बहुत कठिन भाषा की आवश्यकता नहीं है, कठिन शब्दों की भी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता यह है कि आपको प्रश्न समझ आना चाहिए और जो पूछा गया है उसका आप सटीक उत्तर दे पा रहे हैं। इधर उधर घुमा के उत्तर नहीं होना चाहिए, अननेसेसरी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए आंसर के अंदर। जितना क्रिस्प, टू द पॉइंट और सटीक आंसर आप देंगे उतना आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। कई लोग कठिन शब्दों के चुनाव में फंस जाते हैं, जैसा कि पहली क्वेरी है कि मुझे गुड वर्ड्स नहीं मिलते। गुड वर्ड्स की ज़रूरत ही नहीं है, आपको जो भाषा में जो शब्द सूझ रहा है वो आप इस्तेमाल करें। आपका भाषा का प्रभाव होना चाहिए, आप बिना किसी तकलीफ के अपनी बात सामने रख सकें ऐसा प्रतीत होना चाहिए। शब्द का चुनाव करने के लिए अननेसेसरी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये किसी भी भाषा ज्ञान का या आपकी इंग्लिश लैंग्वेज कैसी है या हिंदी लैंग्वेज ऐसी है उसका एग्ज़ाम नहीं है, ये इंटरव्यू है। यहाँ आपकी क्वालिटीज़ देखी जा रही हैं, भाषा का ज्ञान नहीं देखा जा रहा। ठीक है, तो इस बात को जब आप समझ जाएंगे तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।